So hello guys, welcome to Unacademy platform. I am Shubdeep Datta, your host and your mentor for chemistry classes. Uh, we were dealing with nomenclature जिसमें हम लोग की कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से नेमिंग किया जाए उसके बारे में सीखते हैं. तो लेट्स जस्ट बिगिन फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट इन द लास्ट लेक्चर, राइट? So just give me a moment. So this is it. So we are at the target top 100 ranks MST CET 2021, right? So you can see the maths timing is from 10 a.m. then again at 8 p.m. Chemistry at 1 p.m. then again at 9 p.m. Biology 11 a.m. then again at 7 p.m. Physics at 9 a.m. then again at 6 p.m. right? Let me give you a little brief about myself. I am Shubdeep Datta and I am an alumni of National Institute of Technology, Durgapur. I have some 5+ years of teaching experience and I teach chemistry. I specialize in teaching IIT, JEE and NEET along with various state entrance examinations such as the Maharashtra Common Entrance Test, right? So we are all here for the Maharashtra CET examination. So let's crack with MST CET, India's largest e-learning platform, and you are with Unacademy right now, and the plus subscription and access to unlimited live and recorded courses from India's best educator. So first step towards learning on Unacademy is to download the Unacademy Learning app, and once you download the Unacademy Learning app, you have to sign up for it, and then according to your plan of study, you have to choose the subscription, right? You can also join us on Telegram app by downloading it from the Google Play Store, and once you download the Telegram app, you have to type this link crack Maharashtra CET in the URL, and then you have to click to join the group. So these are the subscription plan, guys. For 1 month you have to pay 2,700 rupees. For 3 months it is 6,750 rupees. For 6 months it is 12,150 rupees, and for 12 months it is 14,850 rupees. Okay, so the 24-month plan is for 21,600 only. For 24 months it is 21,600 only. So please guys, if you want the extra discount, so what you have to do is one second. If you want the 10% extra discount, then what you have to do is you have to use this code, which is Shubdeep, that is also my name, and if you use this code you can get 10% extra discount on Unacademy. So suppose you are choosing this plan for 6 months, then actually you have to pay 12,150, but if you use this referral code, then 1,215 rupees would be deducted, right? And total you will get as something, whatever it is the money here, so this much amount you have to pay, right? Thank you for listening, and now we shall begin. We are actually learning about the basics of organic chemistry. Okay, the basics of organic chemistry, the foremost thing is to learn the nomenclature, how you would name a certain chemical compound which is organic in nature. How would you name? So that pattern is recommended by IUPAC, okay, International Union for Pure and Applied Chemistry. So as customary, we will come to the open board. सो इन द लास्ट क्लास हमने देखा था कि जो साइक्लो कंपाउंड्स होते हैं उनको किस तरह से नेम किया जाए. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास मान लो कुछ इस तरह का एक कंपाउंड होता तो हम इसको कैसे नेम करते. सबसे पहले हम क्या करते थे, नंबरिंग करते थे, राइट? नंबरिंग करते थे, और नंबरिंग भी ऐसे करते थे जिसमें कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है
वो एज अ पेरेंट चेन हमें मिले। साथ ही साथ जो हमारी प्रियोरिटी होती थी नंबरिंग की, वो क्या होती थी कि ऑल द ग्रुप्स शुड हैव लीस्ट नंबर, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स को हम सबसे लीस्ट नंबर देने का ट्राई करते थे। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है, इस तरह का कंपाउंड है, तो इसको नेमिंग कैसे करेंगे? देखो यार, इस तरह का अगर कंपाउंड है तो हम इसको नेम करेंगे कुछ इस तरह से। कहीं से भी ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है। तो बेटा अगर हम इस मिथाइल ग्रुप के कार्बन को, हमें बेसिकली इसको नंबर करना है। ये जो रिंग है, रिंग के ऊपर जितने भी कार्बन है इसको हम 1 देते हैं, इसको 2 देते हैं, इसको 3 देते हैं। तो देखते हैं 1 पे भी मिथाइल है, 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है। सबसे पहले हमें जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है उसमें हमें क्या देना होता है? साइड सब्स्टिट्यूएंट्स। तो 3 साइड सब्स्टिट्यूएंट्स आपके मिथाइल ग्रुप है। तो बेसिकली ये ट्राई मिथाइल है, बेसिकली ये ट्राई मिथाइल है। तो क्या है 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल। ये तो आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। प्राइमरी प्रीफिक्स में आप बताते हो कि साइक्लो है, बाईसाइक्लो है या स्पाइरो है। तो साइक्लो मतलब एक सिंगल लूप, है ना, जिसमें कोई भी ब्रिजहेड कार्बन नहीं है या कोई बॉन्ड कॉमन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? एक सिंगल लूप, राइट। सो इसको हम एक सिंगल लूप की तरह माने तो इसको हम लोग साइक्लो बोलेंगे, लिख दिया। हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब इस साइकिल में कितने कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो रूट वर्ड हो गया हमारा प्रोप। केवल और केवल हमारे पास सारे जो हैं वो सिंगल बॉन्ड्स है। तो एल्केन का ये एक पेरेंट है, सॉरी डेरिवेटिव है, तो एल्केन के लिए प्रोप लिखा है तो एन लगा देंगे, ठीक है ना। तो 1, 2, 3 ट्राई मिथाइल साइक्लो प्रोपेन इज द आंसर, ठीक है। तो साइक्लो आपने करना सीख लिया, लेकिन अब हम लोग साइक्लो में ही सीखेंगे एल्केन्स के बारे में, सॉरी एल्कीन्स के बारे में, ठीक है ना। साइक्लो में ही सीखेंगे हम लोग अब एल्कीन्स के बारे में। तो एल्कीन्स जो हैं साइक्लो अगर हैं तो ध्यान रखना कि ये जो डबल बॉन्ड कहीं पर भी गिरेगा ना, तो डबल बॉन्ड के ऊपर से आपको नंबरिंग करनी होगी। तो ऐसे करनी है नंबरिंग कि ये डबल बॉन्ड को में अगर एक कार्बन को आप 1 दे रहे हो तो दूसरे कार्बन को आप 2 दोगे। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह का साइकिल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने 1 दे के इधर पे 2 नहीं दे सकते, ये गलत मूव हो जाएगा। आपको 1 के बाद यहाँ पे 2 देना होगा, ये राइट मूव होगा। मतलब डबल बॉन्ड है तो 1 दोगे, उसके बाद ही आप डबल बॉन्ड के बाद 2 दे सकते हो। इस पूरे को क्रॉस करके ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाकी सारे के सारे नियम कानून सेम हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं, जैसे कि सबसे छोटा मेंबर लेते हैं साइक्लोएल्कीन्स का। तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट साइक्लोएल्कीन गाइस। तो नंबरिंग हम क्या करेंगे? हम लोग प्रेफर करेंगे नंबरिंग इस तरह से दे कि ये डबल बॉन्ड को सबसे लीस्ट नंबर मिले, है ना। तो 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 1, 2 एंड 3 इस तरह से हमने इसमें नंबरिंग दे दी। अब अगर हमने इसमें ऐसे नंबरिंग दे दी गाइस, तो हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? नाम देना स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका साइड सब्स्टिट्यूएंट है, वो तो कुछ है नहीं, है ना। मतलब इस साइकिल के ऊपर कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद में आपका आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या देखते हैं? साइक्लो है कि नहीं, बेशक ये साइक्लो है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं? रूट वर्ड, बेशक इसमें रूट वर्ड कितना होगा? 3 का मतलब प्रोप, तो साइक्लो प्रोप। अब देखो यार, ये 1 नंबर पे हमने इन दे रखा है ना, तो इन लगा देंगे, तो दिस इज साइक्लोप्रोपीन, ठीक है ना, दिस इज साइक्लोप्रोपीन। ध्यान रखना नंबरिंग हमें कैसे देनी है। इस डबल बॉन्ड में अगर हमने यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे हमें 2 ही देना है। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब आप सोचोगे सर कि अगर हमने यहाँ पे 1 दे दिया होता और यहाँ पे 2 दे दिया होता तो ये मिथाइल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिल जाता। ऐसा करते तो हमारा डबल बॉन्ड को भी प्रायोरिटी मिल जाती और इसको भी लीस्ट मिल जाता, तो इसको भी फ़ायदा मिल जाता। नहीं, ऐसा नहीं करना है। नियम नियम है,
इसको 1 दिया है तो इसको 2 देंगे और इसको हम 3 देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई? तो 1, 2 एंड 3, तो इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो। अच्छा, अभी साइड सब्स्टिट्यूएंट है ना हमारे पास, तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स में साइड सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 नंबर पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल, ठीक है ना। उसके बाद 3 मिथाइल के बाद में 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है, राइट। और रूट वर्ड आपका कितना है? प्रोप है। तो प्रोप, अब 1 पे ही डबल बॉन्ड है तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, तो साइक्लो भी तो है यार, सॉरी मैं फिर से लिख देता हूँ। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग लिखेंगे 3 मिथाइल, ठीक है ना। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम क्या लिखेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स में लिखेंगे साइक्लो। रूट वर्ड में क्या लिखेंगे? रूट वर्ड में लिखेंगे प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन की रिंग है ना। और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में हम क्या लिखेंगे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड है तो इन लिख दें। 1 इन इसलिए नहीं लगाए क्योंकि 1 का मतलब हमेशा माना ही जाता है कुछ ना हो तो 1 होगा, तो दिस इज़ द थिंग। और सेकेंडरी सफिक्स तो यहाँ है नहीं, तो पूरा नाम बन गया 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेते हैं, इसका क्या होगा? सीधे सीधे इसका आंसर बता देंगे। इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? ठीक है, और इसका क्या होगा बताओ? बोलो, 4 हैं, चारों का नाम बताइए जल्दी से। चलिए आप वीडियो को पॉज कर देना, है ना, और वीडियो को पॉज करने के बाद इसके नाम बता देना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखो यार, मुझे तो इस डबल बॉन्ड को क्रॉस करके ही जाना है। 1, 2, 3 एंड 4 नंबरिंग कर दिया। तो देखें भाई, ये क्या है? साइक्लो प्रोप नहीं, ब्यूट है, क्योंकि 4 कार्बन है, तो साइक्लो ब्यूटीन, बस दैट्स इट। इसका क्या होगा? 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, इससे 2 काम हो गए। इन मिथाइल को लीस्ट नंबर भी मिल गया, और इस डबल बॉन्ड को 1 और 2 लीस्ट नंबर इस तरह से दिया कि एक कार्बन के ऊपर 1 आ जाए और डबल बॉन्ड के बाद दूसरे कार्बन के ऊपर 2 आ जाए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई मिथाइल। अब मेरे ख्याल से आप प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स ये बार बार बोलने का ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड हो चुका है अब तक, राइट। सो 1,2 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या? साइक्लो ब्यूटीन। देखो इन दोनों में अंतर क्या है? ये भी साइक्लोब्यूटीन है देखा जाए तो, और अगर इन मिथाइल ग्रुप्स को आप इग्नोर कर दोगे तो ये भी साइक्लोब्यूटीन है ना। तो देखो साइक्लोब्यूटीन तो रहेगा ही, बट इसमें सब्स्टिट्यूशन भी है ना। सब्स्टिट्यूशन भी किसका है? 2 मिथाइल का है, तो डाई मिथाइल, है ना। और पहले 1,2 मतलब पोजीशन भी बता दी। तो यार ये सारा का सारा लॉजिक है ना, ये सारा का सारा लॉजिक है। अब इसमें सोचो क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मिथाइल है तो हम ऐसा कर सकते थे 1, 2, 3, बट ऐसा हमें करना नहीं है। हमें हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पे हम बेसिकली देखो, एक चीज़ मैं आपको और समझा दूँ। यहाँ पे एल्कीन्स तो है साइक्लो, बट नो फंक्शनल ग्रुप। अभी कोई फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं हो रही है। जब फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो हम लोग उसके बारे में भी सीख लेंगे, राइट। तो यहाँ पे कोई अगर फंक्शनल ग्रुप वगैरह नहीं है तो हम इस मिथाइल को 1 दे सकते थे और इसको हम 2 दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। ध्यान रखना, हमेशा डबल बॉन्ड को ही हमें प्रेफरेंस देनी है। तो सेकंड प्रेफरेंस मिथाइल की हो जाएगी। मतलब पहले हम ट्राई करेंगे कि डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर दिया जाए, और एक बार डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर दे देते हैं तो हमारी सेकंड प्रेफरेंस रहेगी ये जो आपका मिथाइल ग्रुप है। उसके बाद हम इस मिथाइल ग्रुप को भी प्रेफरेंस में रख देंगे, ठीक है। तो अगर हम 1, 2, तो हम देखो इसको लीस्ट नंबर कैसे दे सकते हैं? 2 तरह से दे सकते थे। मैं इसको मिटा दूं, एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा था ना, अगर हम यहाँ से चलते हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो इस डबल बॉन्ड को तो 1 मिला है नंबर, ठीक है ना।
और इस मिथाइल ग्रुप को 3 नंबर मिला है। बट अगर हम किसी और तरीके से जाते हैं, मान ले यहाँ से जाते हैं 1 2, क्योंकि हमें इस डबल बॉन्ड को 1 और 2 पे ही रखना है, 1 2 और यहाँ पे 3 करते और यहाँ पे 4 करते, तो रेड वाली नंबरिंग देखो उसमें क्या हो जाता, झोल हो जाता। उसमें मिथाइल को हम 4 पे रख रहे हैं, लेकिन जो ब्लू वाली नंबरिंग है उसमें हम इस मिथाइल को 3 पर रख रहे हैं। तो व्हाट इज़ मोर कन्वीनियंट कि रेड वाला हम भूल जाएं, एक्सेप्ट कौन सा करेंगे, केवल और केवल ब्लू वाला। क्या ये बात समझ में आएगा ये सभी को? क्या ये बात सभी को समझ में आई? चलो तो 1 2 3 4 ठीक है। चलो सो 1 2 3 एंड 4, तो मैं कभी कभी खो जाता हूँ तो प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। एनीवेज, सो 1 2 3 4, तो 3 पे मिथाइल है साइड सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले, तो 3 मिथाइल, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, साइक्लो है। उसके बाद 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन है ना, तो साइक्लो ब्यूटेन, 1 पे ईन है तो साइक्लो ब्यूटीन, ठीक है ना। 3 मिथाइल साइक्लोब्यूटीन नाम हो जाएगा, बीच में कोई गैप नहीं है यार, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो ये अब देखिए ज़रा, मिथाइल है, ये ग्रुप मिथाइल है, ये ग्रुप इथाइल है, ठीक है ना। तो ये ग्रुप मिथाइल है, ये ग्रुप इथाइल है, ये है डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड, सही। अब हम क्या करें कि 1 2 3 मिथाइल को हम उस पे रखें कि इथाइल को हम रखें 6 पे। तो देखो, जब ऐसा कन्फ्यूजन आए कि अगर हमें मिथाइल को सेम दूरी पर है तो 1 2 3 करें, तो ये 3 पे इधर से आ रहा है, और अगर यहाँ से करें तो 1 2 3, ये भी 3 पर आ रहा है। अगर दोनों साइड सब्स्टिट्यूएंट सेम दूरी पर हैं डबल बॉन्ड से, तो हम क्या कर सकते हैं इस दुविधा को दूर करने के लिए कि मिथाइल को हम तीसरे नंबर पे रखें या सेम डिस्टेंस पे रखें या इथाइल को सेम डिस्टेंस पे रखें, हम चूज़ कर लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहता है कि ई पहले आता है, तो इसीलिए ई को लेस नंबर दिया जाए। तो इसीलिए हम पहले करेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब 3 इथाइल है, और क्या है 6 मिथाइल है, और क्या है साइक्लो है, उसके बाद हेक्स है, उसके बाद ईन है। ईन में 1 लगाने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी 1 पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसका नाम क्या होगा बोलो, इसका नाम क्या होगा, झटाझट बता दो। अभी अभी 1 2 3 बस इतना ही तो करना है, बाकी तो आपको पता ही है 6 मेंबर की रिंग है। तो 1 2 3, तो 1 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, तो 1,3 डाई मिथाइल पहले ही हो गया, ठीक है ना। साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, कभी भी ऐसा हो कि आपके पास मान लो कोई रिंग है और एक डबल बॉन्ड जो है ना वो बाहर है, तब आप क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखना डबल बॉन्ड अगर अंदर कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है और एक डबल बॉन्ड बाहर है, तो हमेशा डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे, इस तरह से कि ये जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है ना, अगर भाई पेरेंट चेन आप इसको मान रहे हो, इसको मान रहे हो पेरेंट चेन, तो ये तो साइड सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इस साइड सब्स्टिट्यूएंट का ग्रुप का नाम क्या होगा, इस ग्रुप का साइक्लोपेंटेन है ये, तो साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल।
और 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 एंड 4 में 1 2 3 4, तो साइक्लो पेंटाइल, ये तो ग्रुप का नाम हो गया। उसके बाद क्या है, 1 पे ही है ना साइक्लोपेंटाइल, तो कुछ ज़रूरी नहीं है, आप लोकेंट्स को दो यहाँ पे साइक्लोपेंटाइल, ये तो आपका हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स में कुछ भी नहीं है, ना ही साइक्लो है, ना ही बाईसाइक्लो, ना ही स्पाइरो है, तो इसको रहने देंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका है रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब पेरेंट चेन 1 2 3 4, ब्यूट है ना, ये तो है नहीं, रूट वर्ड लिखा गया है, दैट्स इट। ब्यूट कितना है, 2 पे इन है, तो ब्यूट 2 इन, दिस इज द नेम, साइक्लोपेंटाइल ब्यूट 2 इन। ध्यान रखना बी कैपिटल नहीं है, बी स्मॉल है, ठीक है। चलो एक और करें। अगर इस तरह का हो हमारे पास केस, तब क्या करना है। इस तरह का केस अगर होगा तो देखो यार, देखो यार, अंदर 2 डबल बॉन्ड है ना, तो इसको प्रेफरेंस देंगे, इसको पेरेंट चेन मानेंगे और इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम साइड सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो साइड सब्स्टिट्यूएंट का नॉर्मली नाम क्या होता, नॉर्मली नाम होता, जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है जिधर से जुड़ा उधर से ही 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो होता प्रोपीन, है ना। तो अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा के ये बॉन्ड जोड़ा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन डेरिवेटिव प्रोपीनाइल, ठीक है ना, प्रोपीनाइल, ठीक है। तो साइड सब्स्टिट्यूएंट प्रोपीनाइल है। अब इधर से नेमिंग करते हैं, तो 1, क्योंकि इसी डबल बॉन्ड को हम 1 2 देंगे, रीज़न कि अगर हम इसको 1 2 पे तो रखना ही है हमें इस तरह से भी लेकिन देखना है कि साइड सब्स्टिट्यूएंट को भी प्रेफरेंशियली कम नंबर मिल जाए। तो भाई यहाँ पे इसको 1 2 रखते, इससे अच्छा यहाँ पे रख दो 1 2, है ना। अगर इसमें 1 2 रखते तो ये कॉम्प्रोमाइज़ होता, तो इससे बढ़िया यहाँ पे 1 2 रख दो, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, लेकिन इसको लीस्ट नंबर मिल जाएगा। वैसे भी 2 डबल बॉन्ड में दोनों को 1 तो नहीं दे सकते ना, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5, तो 1 पे प्रोपीनाइल है, तो प्रोपीनाइल, और उसके बाद क्या है, साइक्लो पेंटा 1,3 डाईइन, तो दैट दिस इज इट, साइक्लोपेंटा 1,3 डाई। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो ऐसा होता तो, मान लो ऐसा होता तो इस तरह का होता, तो अब हम फिर से बाहर को प्रेफरेंस देते हैं। मतलब ये जो है ये एक साइड सब्स्टिट्यूएंट हो जाता, क्यों, क्योंकि बाहर ज़्यादा डबल बॉन्ड की संख्या है, जहाँ पे ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे वहीं पर हमें सबसे लीस्ट नंबरिंग देनी है, ठीक है। उसी को ही हम पेरेंट चेन मानेंगे, और ये क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन, ठीक है। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये है 1, ये है 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो 1 पे क्या है, देखो नॉर्मली इसका नाम क्या होता, नॉर्मली इसका नाम होता साइक्लो पेंटा 1,3 डाईइन, लेकिन अभी इसको साइड सब्स्टिट्यूएंट में मान रहे हो, तो हम मानेंगे कि ये बॉन्ड जो है वो खाली रह गया, मतलब एक हाइड्रोजन हटा दिया गया और इसको एक साइड डेरिवेटिव की तरह ले लिया। तो उसमें जब हम एक हाइड्रोजन हटा के एक बॉन्ड को खाली छोड़ देते हैं बाकी ग्रुप के साथ लगने के लिए, तो हम वहाँ पे आइल लगा देते हैं कि नहीं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो पेंटा 1,3 डाईइनाइल, ठीक है ना। अब कॉम्प्लेक्स हमेशा ब्रैकेट में होते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट 1 पे क्या है, 1 पे है साइक्लो पेंटा 1,3
डाई इनाइल, उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में टोटल 6 कार्बन है, तो हेक्सा 1,3,5 ट्राईइन। तो इतना लंबा चौड़ा इन महाशय का नाम है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्या ये बात सभी को क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, लेकिन चलो ये भी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, छोटे छोटे सिंपल एग्जांपल्स लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक से ज़्यादा रिंग जो है वो किसी एक कार्बन के थ्रू जुड़ी हुई है, तो ऐसे में हमें क्या करना है? एक से ज़्यादा रिंग है, ये एक रिंग है, ये एक रिंग है। एक से ज़्यादा रिंग किसी एक कॉमन कार्बन या किसी एक चेन ऑफ कार्बन से जुड़ी हुई है, तो हमें हमेशा ये जो चेन ऑफ कार्बन है जो इन दोनों रिंग्स को अपने साथ जोड़ रही हैं, इसी को ही पेरेंट चेन लेना है, भले ही जितना छोटा है भले ही जितना बड़ा है। तो अपने आप ये क्या बन जाएगा? साइड सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएंगे। तो ये साइड सब्स्टिट्यूएंट में क्या कहलाएगा? ये साइड सब्स्टिट्यूएंट्स में कहलाएगा हेक्साइल। जैसे एल्काइल होता है ना, वैसे ही हेक्साइल, ये भी हेक्साइल कहलाएगा और ये भी हेक्साइल कहलाएगा। ठीक है, सॉरी नॉट हेक्साइल यार, आई एम वेरी सॉरी। जो साइक्लो कंपाउंड है ना, तो ये क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल। ठीक है ना, और ये भी क्या कहलाएगा? साइक्लोहेक्साइल। ठीक है, ये क्या है? ये मीथेन डेरिवेटिव, एक कार्बन है। पेरेंट चेन हमेशा एल्केन डेरिवेटिव होता है, तो इसको क्या लिखेंगे? 1,1 डाईसाइक्लो, मतलब इसी पोजीशन पर 1 पर ये भी है और 1 पर ये भी है, तो 1,1 डाईसाइक्लो हेक्साइल ऐसा लिख सकते हैं। 1,1 डाईसाइक्लो हेक्साइल ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो डाईसाइक्लो हेक्साइल के बाद ये तो लिखें, उसके बाद लिखेंगे मीथेन। ठीक है, क्योंकि कार्बन एक ही है, ये पेरेंट चेन है तो इसमें एक ही कार्बन है, तो ये एल्केन होगा एक तरह से। क्या ये बात समझ में आई? चलिए एक और करते हैं। अब मान लो यही कार्बन होता, मान लो, ठीक है, तो नॉर्मली ये CH4 है जैसे, तो इसमें से हमने 3 कार्बन हटा दिए, 3 कार्बन लेस कर दिए, तो एक कार्बन तो जुड़ा है, बाकी 3 क्या हैं? आपके खाली बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? ऐसा जोड़ देते हैं, इस तरह के रिंग्स जोड़ देते हैं। तब हम क्या करेंगे? तब हम रिंग पे जाएंगे ही नहीं, क्योंकि एक से ज़्यादा रिंग है, किसी एक को तो आप पेरेंट चेन नहीं मान सकते ना। तो ये भेदभाव हम तीनों रिंग के साथ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? इन तीनों में लड़ाई ना हो, इसीलिए ये जो छुटकू सा रिंग है ना एक कार्बन का, सॉरी चेन है ना छुटकू सा एक कार्बन का, इसी को ही हम रिंग मान लेंगे। ठीक है ना, तो इस रिंग इसको ही इसी को ही हम चेन मान लेंगे। तो ये एक कार्बन है, तो इसको केवल एक ही लोकेंट मिलेगा, 1 है ना। इस 1 पोजीशन पे 3 क्या हैं? साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप्स हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1,1 ट्राई साइक्लोप्रोपाइल, है ना। तो ये एक्चुअली आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स बन गया, मतलब साइड सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब यही आपका पेरेंट चेन, इसमें कोई साइक्लो बाईसाइक्लो या स्पायरो तो है नहीं, तो आपका जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ना वो कुछ होएगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद है रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या आएगा? मैथ आएगा, इसके लिए मैथ। और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड देखते हैं। तो सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड अगर हम देखें, तो इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पे एक कार्बन है, पेरेंट चेन में सिंगल डबल बॉन्ड देखा जाएगा, बाकी कहीं और पे है सिंगल डबल बॉन्ड, वो तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ गया ना। तो पेरेंट चेन में सिंगल डबल बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि एक ही तो कार्बन है, तो एल्केन माना जाएगा। तो मेथा लिखा हुआ है तो मेथेन कर दिया इसको।
तो 1,1,1 ट्राईसाइक्लो प्रोपाइल इथेन, दिस इज द इथेन नहीं, ट्राईसाइक्लो प्रोपाइल मीथेन। क्या ये बात क्लियर है सभी को? अच्छा, अब एक चीज और देखना जरा, अब एक चीज और देखना जरा, एक चीज और क्या है कि यहाँ पे हम 1,1,1 ना भी लगाए ना तो भी काम हमारा बन जाएगा, क्योंकि मीथेन लिखा है ना, इसका मतलब ही एक ही कार्बन है। तो ट्राईसाइक्लो मतलब इसी पे ही 3 कार्बन है, इसी पे ही 3 साइक्लो ट्राईसाइक्लो प्रोपाइल ग्रुप्स हैं, है ना, इसी पे ही। तो बेसिकली 1,1 लिखने का ना यहाँ ज़रूरत है ना यहाँ ज़रूरत है। मेरे ख्याल से आप ये चीज़ समझ गए होंगे, है ना। एक और एग्जाम्पल ले, क्या एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका नाम क्या होगा? कभी भी 2 रिंग्स हो ना और आपस में कार्बन कार्बन का बॉन्ड हो, मतलब इस तरह का नहीं होना चाहिए, मतलब इस तरह का ब्रिज हेड नहीं होना चाहिए या कॉमन बॉन्ड नहीं होना चाहिए 2 रिंग्स के बीच में। तो यहाँ पे कोई भी कॉमन बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड जो है वो इन दोनों रिंग्स को जोड़ रहा है, इन दोनों रिंग का एक कॉमन पार्ट नहीं है, राइट। सो कभी भी ऐसा हो तो हमेशा एक को, जैसे यहाँ पे इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हुए बाकी दूसरे वाले को हम लोग साइड सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, ठीक है ना, दूसरे वाले को हम साइड सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो साइड सब्स्टिट्यूएंट हमेशा क्या होते हैं? साइड सब्स्टिट्यूएंट हमेशा ऐसे होते हैं कि इनको ऐसी प्रेफरेंस में रखा जाए जिसमें कि इन डबल बॉन्ड्स को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस मिले, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं, हम रेड से दिखाता हूँ, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 और 6 करते हैं, तो ऐसे तो इसको 6 वो मिल जाएगा पोजीशन, ठीक है ना, और इसको 1 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। तो क्यों ना हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये ग्रीन से दिखाता हूँ, इसको 1 दे दें, यहाँ पे 2 दे दें, यहाँ पे 3 दे दें, ठीक है ना, और यहाँ पे 4 दे दें। तो ऐसे भी इन दोनों बॉन्ड को 1 और 4 मिल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इसको 3 मिल जाएगा। एक बॉन्ड को नंबरिंग देंगे तो दूसरा बॉन्ड हमेशा 4 पे गिर रहा है, तो क्यों ना इसको ऐसे नंबरिंग दी जाती कि 1 4 पे ही रहे, लेकिन इसको भी एक नंबरिंग मिल जाए। तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज नंबरिंग जब डिसाइड हो ही गई है तो हम लोग चलिए नंबरिंग देख लेते हैं। इसको 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं, 4 दे देते हैं, 5 और ये 6। तो पहले ये साइड सब्स्टिट्यूएंट का नाम डिसाइड कर लें। देखिए, ये साइड सब्स्टिट्यूएंट जो है, हमेशा साइड सब्स्टिट्यूएंट में जहाँ से जुड़ने वाला है उसको 1 देंगे, फिर इधर आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर ये 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग ग्रुप को नाम डिसाइड करते हैं। तो ये साइक्लो तो है ही है, साइक्लो के बाद प्रोपीन, साइक्लो हेक्स तो है ही है, साइक्लो हेक्स 2 इनाइल, ऐसा कहलाएगा ये कि नहीं, ऐसा कहलाएगा ये कि नहीं, साइक्लो हेक्स 2 इनाइल, ठीक है ना। चलो,
उसके बाद अब ये तो आपका हो गया क्या, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में यहाँ पेरेंट चेन की बात हो रही है, तो पेरेंट चेन नहीं एक रिंग है, तो प्राइमरी में यहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स में आप यहाँ पे साइक्लो लिखोगे, इसके लिए साइक्लो लिखोगे, फिर 1,4 डाई इन लिखोगे, हेक्सा 1,4 डाई इन लिखोगे, वन कॉमा फोर डाई इन लिखोगे तो यही नाम हो जाएगा, साइक्लो हेक्स टू इनाइल, साइक्लो हेक्सा 1,4 डाई इन। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू। सो गाइज़, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। क्रैक महाराष्ट्र सीईटी नाम से हमारा चैनल है। यूट्यूब पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमें आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चल सके और प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम उनको आपका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सके, राइट। सो मेरा नाम शुभदीप दत्ता है। अगर आप ये रेफरल कोड SHUBHDEEP यूज़ करते हैं तो आपको इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा कि आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। देखिए, कोई भी डिस्काउंट छोड़ना नहीं चाहिए, राइट। सो अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो इस कोड को याद रखिएगा, मेरा नाम भी आपको याद हो जाएगा। एक बोनस पॉइंट ये है, और दूसरी चीज़ कि आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। सो बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको हम जब भी कोई नया वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन बार बार करके भेजते रहें। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइज, थैंक यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। साइनिंग ऑफ, दिस इज शुभदीप दत्ता।